Hello dear students, welcome to my video lecture. In today's video lecture, I am going to explain methods to find solution of first order differential equation. So as earlier you have seen the analytic methods for solving first order differential equation, but those methods were not applicable for only particular type of functions or a particular type of differential equation in which function is integrable. But in many engineering applications, such methods are not used. So to solve such a differential equations, here we are going to use numerical methods. So as per your mechanical branch is concerned, so there are 4 methods to solve first order differential equation, namely Picard's method, Runge-Kutta method, then Taylor's method, and modified Euler's method. So these are again iterative methods. So first of all, I explain working procedure of Picard's method. So here we consider first order differential equation. So as you know the standard form, dy by dx equals to f of xy. So here we are going to solve such a differential equation with initial conditions y equals to y0 and x equals to x0. This is called as initial condition. Now, first of all we see the notations. So the first approximation of solution. So we are going to solve this equation number 1. Solving differential equation means finding value of dependent variable. Means our aim is to find value of y. Right? So for first approximation, जैसे कि मैंने बताया, this is the numerical method and this is what iterative method. तो यहाँ पर हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन अगर फाइंड करते हैं सॉल्यूशन का, तो उसे हम डिनोट कर देंगे y अपर सफिक्स 1. सो y अपर सफिक्स 1 क्या डिनोट करेगा? इट डिनोट फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ सॉल्यूशन. सिमिलरली सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय y अपर सफिक्स 2. थर्ड अप्रोक्सीमेशन इज डिनोटेड बाय y अपर सफिक्स 3 up to so on. If it is asked to find nth approximation, so nth approximation को हम डिनोट करेंगे y अपर सफिक्स n से. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट नोटेशंस. नाउ अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन, अगर अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन पूछा है, देन यू हैव टू फाइंड y1, y2 एंड y3. अगर क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड सॉल्यूशन अप टू फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, देन यू हैव टू फाइंड y1, y2, y3 एज वेल एज y4. सो होल थिंग डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन. And in case if it is not mentioned in question, then perform at least 3 approximations. Okay, remember this. Now let us see what is the actual formula of Picard's method. So if you are going to find first approximation, then notation is y upper suffix 1 and formula is y0 plus integration from x0 to x f of x comma y0 dx. अब f of x y क्या होगा? जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो फ्रॉम दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वी आइडेंटिफाई f of x y and initial conditions gives us value of y0 as well as x0. initial conditions से आपको कुछ constants value मिलेगी. y0 and x0 are some constants. Okay, so just remember the formula. y1 equals to y0 plus integration from x0 to x f of x comma y0. तो गिवन फंक्शन में सिर्फ आप y को रिप्लेस कर देंगे y0 से, और y0 आप कहाँ से लेंगे? गिवन फ्रॉम गिवन इनिशियल कंडीशन. ओके, सो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x. दिस इज फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन. Then for second approximation, notation is y2
and formula is again this y0 as it is plus integration from x0 to x again as it is f of x comma. Since it is iterative method means what? We use previous value for next iteration, right? So यहाँ पर definitely we are going to use previous value of approximation, that is y1. So instead of y0 here we take y1 dx and consequently आपको next approximation की वैल्यू क्या रहेगी वो भी आपको थोड़ा सा अब गेस आ चुका होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में y0 लिया था, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में y1 लिया था. नाउ इन नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मींस इन थर्ड अप्रोक्सीमेशन वी टेक y2, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में हम y3 लेंगे. इन जनरल nth अप्रोक्सीमेशन के लिए हम क्या लेंगे? yn-1. Okay, so third approximation will be y3 equals to y0 plus integration from x0 to x f of x comma y2 then dx up to so on. In general here we write nth approximation, that is yn, which is equals to y0 plus integration from x0 to x f of x comma. Now previous iteration of yn gives us yn-1, right? So this is formula for Picard's method. तो आई होप आपको पिकार्ड्स मेथड क्या ही समझ में आई होगी. तो सिमिलरली जो बाकी की भी जो मेथड्स है कुछ इसी तरह की है, ठीक है. नाउ हियर आई टेक फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पिकार्ड्स मेथड. तो सॉल्व dy by dx equals to x plus y square up to third approximation. Up to third approximation means you have to find y1, y2 and y3 by Picard's method. So here we use Picard's method. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे इसमें आपको मेथड का नाम दिया होगा. So here we are going to use Picard's method. Given y equals to 0 when x equals to 0. So these are initial condition. Y equals to 0 means this is y0. So y0 की वैल्यू क्या है? 0. And x equals to 0 again this is initial condition. So x0 is also equals to 0. या तो फिर इसे लिखने का कुछ डिफरेंट भी तरीका है, मे भी हो सकता है आपको एग्जाम में कुछ डिफरेंट फॉर्म में दिया होगा. और सेम कंडीशन को ऐसा भी लिखा जाता है y of 0 equals to 0 means y की वैल्यू for value of y for x equals to 0. This value represent x. So here x equals to 0 and y is equals to 0. Okay. So इस तरह से भी आपको दिया हो सकता है. So don't get confused. Okay. Now here we use Picard's method, but सबसे पहले आपको f of xy फंक्शन क्या है उसे आइडेंटिफाई करना होगा. So given dy by dx equals to x plus y square and which is equals to f of x y. या तो फिर आप इसे लिख सकते हैं that is dy by dx equals to f of x y. So easily f of x y identify कर सकते हैं. Therefore here f of x y is what? It is x plus y square. We denoted equation number 1. Now we take first approximation. So first approximation of solution. So इसके लिए फॉर्मूला आएगा y1 equals to y0 plus integration from x0 to x f of x comma y0. अब हम x0 y0 की वैल्यू लिख देते हैं, बट अपने पास y0 की वैल्यू कितनी है? y0 is 0 and x0 is also equals to 0. So we substitute these two values. So y1 equals to y0 कितना है? 0 plus integration from x0 की वैल्यू भी 0 है. So integration from 0 to x. Then f of
y0 कितना है 0। सो अपने पास जो फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई, बट यहाँ पर हमें क्या लिखना है एफ ऑफ एक्स कॉमा 0 मीन्स आप y को रिप्लेस कर देंगे 0 से इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर आपको एफ ऑफ एक्स कॉमा 0 मिलेगा x प्लस 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। सो एफ ऑफ एक्स कॉमा 0 की वैल्यू सिर्फ आपको क्या मिलेगी x। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x, यहाँ पर सिर्फ आपको x मिलेगा dx। एंड वी नो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है x स्क्वायर बाय 2। So its integration is x square by 2 and if you apply limits from 0 to x, तो इसका अपर लिमिट आपको मिलेगा x square by 2 और इसका लोअर लिमिट आपको मिलेगा -0, है ना। x को अगर आप 0 से रिप्लेस करते हैं तो इसका लोअर लिमिट मिलेगा आपको 0 एंड हियर्स वैल्यू ऑफ y1 इज x square upon 2। This is our first approximation. Now we move towards second approximation. So second approximation या तो फिर आप second approximation and formula is y2 equals to y0 plus x0 to x f of x comma here we take previous approximation। तो previous approximation क्या है y1 and then dx। तो यहाँ पर अब हम वैल्यूज पुट अप करते हैं। तो जैसे कि अपने पास y0 कितना है 0, x0 भी 0 है। सो y2 is 0 plus integration from 0 to x f of x कॉमा, अब हम y को रिप्लेस कर देंगे y1 से और अभी हमने y1 की वैल्यू क्या निकाली है x स्क्वायर बाय 2 एंड देन dx। ठीक है, मैंने यहाँ पर f ऑफ एक्स वाई रख कर दिया है, लेकिन f ऑफ एक्स वाई क्या था अपना f ऑफ एक्स वाई इज x प्लस वाई स्क्वायर। वी हैव डिनोटेड इट इक्वेशन नंबर 1। हाँ, अब हम y को रिप्लेस कर देंगे x स्क्वायर बाय 2 से। ठीक है, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन, या तो फिर आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं। y को अगर मैंने x स्क्वायर बाय 2 से रिप्लेस किया तो मुझे मिलेगा x प्लस x स्क्वायर बाय 2 से रिप्लेस कर दिया, बट यहाँ पर y का क्या है स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हमें मिलेगा x टू द पावर 4 अपॉन 4, राइट। सो वी कैन डायरेक्टली पुट वैल्यू दैट इज x प्लस, है ना, x टू द पावर 4 अपॉन 2 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा दैट इज 4 dx। नाउ वी टेक इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन आएगा x टू द पावर 5 अपॉन 5, बट ऑलरेडी 4 इज देयर, 5 इंटू 4 क्या आएगा 20। तो और अगर आप यहाँ पर लिमिट्स लगा देंगे, जबकि लोअर लिमिट क्या है 0 है। So if you apply limits, you will get x square by 2 plus x to the power 5 by 20 और इसका लोअर लिमिट यहाँ पर अगर x को 0 से रिप्लेस करते हैं तो 0, सेकेंड टर्म में आपको 0 मिलेगी। सो दिस इज वैल्यू ऑफ y2। दिस इज सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। नाउ थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन आपको मिलेगा, so we denote third approximation by y3 is equals to y0 plus integration from x0 to x f of x comma. For y3 we use previous iteration that is y2 and then dx। फिर से अगर आप यहाँ पर y2 की वैल्यू अगर रखते हैं, so this is value of y2। so y3 is equals to y0 to 0 है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x। हाँ, अब f of x y, दिस f of x कॉमा y2 की वैल्यू हमें मिली है x स्क्वायर बाय 2 प्लस x टू द पावर 5 बाय 20
dx। अब आपका जो गिवन फंक्शन है इसमें आप y को अब रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से, ठीक है। तो हमें मिलेगा तो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x प्लस y स्क्वायर लेते हैं हम, राइट। तो y मतलब यहाँ पर x स्क्वायर बाय 2 प्लस x टू द पावर 5 बाय 20 का आ जाएगा होल स्क्वायर एंड देन dx। तो यहाँ पर हम होल स्क्वायर लेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x प्लस a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2 टाइम्स a इंटू b। सो 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा x टू द पावर 7 अपॉन 20 प्लस b स्क्वायर दैट इज x टू द पावर 5 अपॉन 20 का स्क्वायर आएगा, x टू द पावर 10 अपॉन 20 का स्क्वायर आएगा 400 एंड देन dx। नाउ वी टेक इट्स इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2 प्लस x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन आएगा x टू द पावर 5 अपॉन 5 इंटू 4 दैट इज 20 प्लस x टू द पावर 8 अपॉन 8 इंटू 20 आएगा 160 प्लस x टू द पावर 11 अपॉन 11 इंटू 400 आएगा 4400 एंड वी अप्लाई लिमिट्स फ्रॉम 0 टू x। तो यहाँ पर हर एक टर्म में वेरिएबल होने के कारण आपका लोअर लिमिट डेफिनेटली 0 ही आना है, इसलिए आपको मिलेगा y3 इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस x टू द पावर 5 बाय 20 प्लस x टू द पावर 8 बाय 160 प्लस x to the power 11 by 4400। So this is your required solution। क्योंकि आपको solution up to third approximation पूछा गया था, that's why we have obtained this value up to y3 itself। Okay, so I hope आपको पिकार्ड्स मेथड कैसे यूज करनी है समझ में आई होगी। और while आइडेंटिफाइंग और while टेकिंग इनिशियल कंडीशन आपको प्रिकॉशन लेना होगा, क्योंकि मैंने दूसरा जो फॉर्मेट है लाइक y ऑफ x0 इक्वल्स टू y0, तो उससे भी आपको x0 y0 की वैल्यू आइडेंटिफाई करते आनी चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल इज यूज पिकार्ड्स मेथड टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 0.5। तो यहाँ पर कितने अप्रोक्सीमेशंस परफॉर्म करने वो बताया नहीं है, बट यहाँ पर एडिशनली इट इज आस्क्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 0.1। सो हियर वी परफॉर्म ओनली सिंगल अप्रोक्सीमेशन, और जो भी आपको फंक्शन या फिर सॉल्यूशन मिलेगा उसमें हम पुट कर देंगे x इक्वल्स टू 0.1। ओके, and here we have given initial condition that y equals to 1 when x equals to 0। so this is y0 and this is what x0। या तो फिर इसे दूसरे वे से भी लिखा जा सकता है, so maybe it can be written as y of 0 equals to 1। this is another way of writing this initial condition। y of 0 equals to 1 means actually इस कंडीशन को आप इस तरह से रीड करेंगे y of x0 equals to y0। so this value represent x0 and this value represent y0। you can note this thing। okay, so here x0 is 0 and y0 is equals to 1। we have given equation dy by dx equals to y minus x upon y plus x, and this is what f of xy। so f of xy की वैल्यू है y minus x upon y plus x। we denoted equation number 1 and then we write given initial conditions y equals to 1 when x equals to 0, that means y0 equals to 1 and x0 equals to 0। तो सबसे पहले आपको जो गिवन क्वेश्चन है इससे आपको f of xy आइडेंटिफाई करना होगा। Thereafter identify values of x0 and y0 and then you should start with Picard's method। so by Picard's method जैसे कि मैंने बताया है आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही इटरेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि यहाँ पर एडिशनली आपको वैल्यू पूछी गई है फॉर x इक्वल्स टू 0.5।
1. Okay, so formula for first equation is y1 equals to y0 plus integration from x0 to x f of x comma y0 dx. तो यहाँ पर हम y0 और x0 की वैल्यू लिखते हैं. तो y0 is 1 plus integration from x0 is 0 to x f of x comma y0 कितना है अपना 1 dx. अब इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, y को रिप्लेस कर देंगे 1 से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, f of x comma 1 चाहिए. So by replacing y by 1 we get 1 minus x upon 1 plus x equals to integration of 1 minus x upon 1 plus x dx. और आप सभी को पता है कि इस टाइप के इंटीग्रेशंस को हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं. तो यहाँ पर हम एक एडजस्टमेंट करते हैं, कांस्टेंट के एडजस्टमेंट, सो दैट आपको न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स की टर्म मिले. तो न्यूमरेटर में अगर 1 प्लस एक्स की टर्म आपको चाहिए तो हम यहाँ पर देखिए इस टाइप के एडजस्टमेंट कर सकते हैं. सो 2 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx. तो 2 माइनस 1 प्लस एक्स लिखने से कुछ भी फर्क नहीं गिरा है, बिकॉज दिस न्यूमरेटर इज सेम एज 1 माइनस एक्स. Now afterwards we separate denominators, so we get 1 plus integration from 0 to x. By separating denominator we get 2 by 1 plus x minus 1 plus x by 1 plus x is 1 dx. Now we can easily take its integration. Okay, so value of y1 is 1 plus, अब इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस एक्स आएगा 2 टाइम्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स. एंड इन जनरल जब हम डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन लेते हैं तो ऑफ कोर्स वहां पर बाय डिफॉल्ट लॉगरिथम का बेस होता है e. सो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि आपको आगे का जो कैलकुलेशन है कैलकुलेटर पर परफॉर्म करना है. तो कैलकुलेटर पर आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि वेदर देयर इज लॉग टू द बेस 10 और देयर इज लॉग टू द बेस e, क्योंकि कैलकुलेटर पर लॉग टू द बेस e को ही डिनोट किया जाता है ln से. ln, ओके, सो ln मीन्स व्हाट, लॉग टू द बेस e. और जब भी आप डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन लेते हैं एट दैट टाइम बाय डिफॉल्ट लॉगरिथमिक टर्म का बेस क्या होता है e. अगर आपके पास log टू द बेस 10 है और उसका अगर आपको डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन लेना होता है तो आपको मालूम है हम क्या करते हैं, वी चेंज बेस. इस बेस को हम बेस e में कन्वर्ट करते हैं एंड देन वी कैन डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट गिवन लॉगरिथमिक फंक्शन. तो जैसे कि यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन लिखा है, सो ऑफ कोर्स इट्स बेस इज e और कैसे पर इस लॉग टू द बेस e को ही ln डिनोट करते हैं. ठीक है, तो हम आगे देखेंगे which is अब -1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आएगा -x. ओके, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ y. अब हमें फाइंड, क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ y when x equals to 0.1 means we are going to put x equals to 0.1. So put x equals to 0.1. So value of y1 at 0.1. या तो फिर आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे कि हमने इनिशियल कंडीशन लिखी थी. ओके, इज इक्वल टू 1 plus 2 times log to the base e of 1 plus 0.1 minus x means what, again 0.1, which is equals to 1 plus 2 times, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं log to the base e को ln लिख लेती हूँ. ठीक है, ln 1 plus 0.1 क्या आता है 1.1 minus 0.1. Now with the help of calc you can take value of ln of 1.1 and perform rest of the calculations, so you will get required value, and here required value is
1.0906. Okay, and this is required value of y at 0.1, and as here we have performed only single iteration, so here I take this one. So this is required solution. So in this way we use Picard's method for solving first order differential equation with given initial conditions. So I hope आपको ये वाली मेथड समझ में आई होगी. तो अपना जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा तो इसमें मैं सेकंड मेथड एक्सप्लेन करूंगी, दैट इज Runge-Kutta मेथड. टिल वी स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच.